Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way to Maths. This is Varun Goyal, your maths teacher. Today we will continue with class 12 topic differentiation with exercise 5.6. So in this exercise what we will study? Dear students, in this exercise we will study about the parametric form of the mathematical terms and mathematical definitions, and we will study here some trigonometric functions which are dependent upon some other functions. As you all know, in my previous videos you have seen that I have posted so many questions based on chain rule. Okay, so once you see that questions also that based on chain rule, afterwards we will start this topic, that is parametric. This one is the easiest topic in your book, so let us see how to solve this topic. So before solving this topic, let us start some question answers with basics. So from your NCERT book, exercise 5.6, we will continue with question number 1. Statement is x equal to 2at square, y is equals to 8 e raised to power 4. We have to find dy by dx. So students, ਆਪਾਂ ਹੁਣ dy by dx ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ dy by dx फाइंड करना ਵਾ। उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ NCERT ਬੁੱਕ 'ਚ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਟੀ ਆ ਤੇ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਫਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ dx ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਤਾਂ 2a ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ 2t ਐਂਡ 1, it will be what its answer is, 2 2s ਦਾ 4at, its answer is 4at। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ dy by dt ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 4 ਅੱਗੇ a ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ t ਕਿਊਬ, ਤੇ t ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ 1। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ dy by dx, dy ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, dx ਨੀਚੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ dy by dx ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ dy by dt ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ dx by dt ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ 4at ਕਿਊਬ ਓਵਰ 4at। ਦੇਖੋ 4a ਦੇ ਨਾਲ 4a ਕੈਂਸਲ, t ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ t ਕੈਂਸਲ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏਅਰ t ਸਕੇਅਰ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਆਂਸਰ ਆਫ ਯੂਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Second question is completely same, second, third, fourth, these questions I am not going to solve because all these questions are extremely same. So ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਵੈਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਆਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ dx by dt, ਮਤਲਬ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ cos 2t ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ cos 2t ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 3 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਟੀ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, cos t, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਟ ਆਫ ਅੰਡਰ ਰੂਟ cos 2t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1/2 ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ cos 2t, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ 1 ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, cos 2t ਦਾ। cos 2t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ 2t, ਅਤੇ 2t ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਓਵਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਚੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਪਿਆ, 3 cos 2t, cos 2t, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ cos t ਅਕੇਲਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਟੀ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਈਨ 2t ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਟੀ, ਸਾਈਨ 2t ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ 2t ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਟ 'ਚ ਆਏਗੀ, cos 2t ਹੋਲ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/2, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆ, ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ, cos 2t। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਐਲਸੀਐਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ये टर्म इत्थे मल्टीप्लाई होएगी 1/2 प्लस 1/2 तो पावर 1 हो जानी है, मतलब इत्थे ये कंप्लीट बन जाएगा, आ चीज़ उदा ही रह जानी है अपने को। तो ये हो गया 3 cos 2t cos t sin स्क्वेयर t, पहली चीज़ है इत्थे अपने को यही बच गई, प्लस इत्थे आएगा अपने को sin क्यूब t ते sin 2t। इस तो बाद जो अपने को डाउनवर्ड्स जो बचा आ चीज़ ये मल्टीप्लाई, इत्थे पावर 1 है, इत्थे 1/2 है, तो यदी पावर आप किदां लिख सकते हैं, सिंपली आप यदी पावर नूं लिख सकते हैं cos 2t, देखो अपने को cos 2t इत्थे है ही, तो नाल आपां की लिख दांगे cos 2t द रूट, पावर 1/2 में काहदे च कन्वर्ट करता रूट्स। आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सो इत्थे ये सी अपनी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली तुसी dy/dt जो कि सेम तरीके का दिता होया, देखो dy/dt च कोई फर्क नहीं है, y का विद रिस्पैक्ट टू t नीचे वाला सेम है, सिर्फ ऊपर फर्क पै रहा अपने को। सो dy/dt सॉल्व करन तो बाद तुहाडे कोल कितना आएगा, वो मैं डायरैक्टली लिख रहा हाँ, dy/dt इज इक्वल टू -3 cos 2t cos स्क्वेयर t, ठीक है जी, इनटू sin t एंड प्लस cos क्यूब t इनटू sin 2t। तुसी ध्यान नाल देख सकते हो बिल्कुल उपरले दा रेसिप्रोकल आया वा, ये कोई फर्क नहीं है, जिथे cos सी उत्थे sin कर दो, तो जिथे sin सी उत्थे cos करता, आप आलमोस्ट सेम ही है अपना रिजल्ट ही। तो उप्स तो नीचे आया cos 2t एंड cos 2t द अंडर रूट, ये आया अपने को dy/dt। आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने दोनों को डिवाइड करांगे तो अपने को जो dy/dx है उसकी जो अपने को वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो पहला तो देखो डिनोमीनेटर नाल डिनोमीनेटर दोनों का कैंसल हो जाना, ठीक है। तो उपर जो टर्म्स बचियाँ वो आप लिख लाँगे, ठीक है। उन्होंने हुण देखो इत्थे भी cos t sin t है, इत्थे भी sin t, इत्थे sin t है अपने को, बट cos t इज़ नॉट देयर आई थिंक। सो देखते हैं आप cos t भी बना सकते हैं, इतों आप किसी तरीके नाल मैनेज करके हुण आप सॉल्व करते हैं। सब तो पहला तो देखो इत्थे cos t है, इत्थे है नहीं गा, इत्थे sin t है बट इत्थे भी sin t दोनों च है, ओके। इत्थे भी sin t इत्थे भी पिया वा, बट sin t इत्थे नहीं है, तो आप इन्हां टर्म्स नूं अरेंज करना। तो वो टर्म्स अरेंज किद्दां होणगियां वो देखते हैं। पहला तो देखो इत्थे जो है मेरे को 3 cos 2t, तो मैं उन्होंने लिखूँगा पहला, ठीक है जी, 3 cos 2t। देखो इत्थे थोड़ा जा चेंज, हाँ, -3 cos 2t, इनू मैं एज इट इज़ लिख लिया। उस तो बाद जो मेरे को टर्म पई सी cos स्क्वेयर t, वो बचेगी आह वाली, तो मैं इत्थे cos स्क्वेयर t लिख लिया, तो नाल मैं लिख लिया sin t, प्लस इत्थे cos क्यूब t लिख लिया, sin 2t नूं आपां लिख सकते हैं 2 sin t cos t, है ना। तो अपॉन्च जो अपॉन्च मेरी टर्म आनी है आह वाली उपरली, ये हैगा वा मेरे को 3 cos 2t cos t sin स्क्वेयर t, प्लस इत्थे हैगा अपने को sin क्यूब t, तो sin 2t नूं आपां लिखांगे 2 sin t cos t। हुण देखो sin t cos t इहदे च भी है, इहदे च भी है, इहदे च भी है, इहदे च भी, कॉमन कढ के आपां की करांगे कैंसल आउट। sin t cos t उपरों नीचों कॉमन कड्ढन तो बाद उन्होंने कैंसल करन तो बाद जो अपने को बचिया वो है अपने को, देखो राजी, वो है -3 cos 2t इनटू cos t, पहली चीज़, ठीक है, प्लस की है अपने को 2 cos क्यूब t, तो ये ओवर जो चीज़ बचेगी वो हैगी अपने को 3 cos 2t sin t, 3 cos 2t sin t, ये चीज़ बची है अपने को, प्लस 2 sin क्यूब t, ये चीज़ा अपने को बच गई। हुण देखो cos 2t का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा ऊपर, जो अपने को cos 2t है, तो cos 2t का फॉर्मूला मैं नीचे अप्लाई करूँगा। हुण मैं किस तरीके अप्लाई करना, मैं इस तरीके अप्लाई करना भी उपरला cos मेरा सॉल्व होंदा हो जाए, तो नीचे वाला मेरा sin, मतलब इत्थे cos 2t का फॉर्मूला मैं इन टर्म्स ऑफ cos लगाऊंगा, तो इत्थे जो cos 2t का फॉर्मूला वो मैं इन टर्म्स ऑफ sin लगाऊंगा। सो अपने को रिजल्ट जो बनेगा वो देखो की है, -3 मैं इत्थे रखिया, तो फॉर्मूला जो है ये उपर आएगा 2 cos स्क्वेयर t -1 इंटू cos t प्लस 2 cos स्क्वेयर t ओवर, इत्थे मैं फॉर्मूले 3 बाहर रखा, तो इत्थे फॉर्मूला आएगा मेरा 1 - 2 sin स्क्वेयर t, ठीक है जी। cos के फॉर्मूले प्लस 1 क्लास वाले वही लगा रहे हैं, प्लस 2 sin क्यूब t, आ दो फॉर्मूले अपने को बने सी, आप लगाते। यदि कैलकुलेशनस जो 3 नूं अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आह वाला नाल इहदे सॉल्व करोगे, थोड़े को बचेगा -4
cos क्यूब टी प्लस 3 की बचेगा अपने को प्लस 3 cos टी। आह 3 ਤੇ ਆਹ 1 प्लस ਦਾ 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਆ cos टी लग गया, ठीक है। तो वो बच गया अपने को ओवर च अपने को की रिजल्ट आएगा 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। हाँ जी राजे ये देखो तुसी ध्यान नाल फॉर्मूला ये वाला उपरला भी देखो तो नीचे वाला भी देखो ध्यान नाल। ये की बन रहा अपने को ये बन रहा वा cos 3t का फॉर्मूला, जे मैं चो माइनस कॉमन कढ़ ला तो ये मेरे को की बन रहा वा सीधा सीधा sin 3t का फॉर्मूला। तो cos 3t अपॉन sin 3t ये जो मेरे को होंदा रिजल्ट ये होंदा वा cot 3t विद द नैगेटिव साइन। सो इत्थे तुहाडा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप सो यू विल सी दिस एक्सरसाइज इन अ गुड मैनर। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 इत्थे खत्म हो जाता है। नाउ आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, वो भी ईजी है। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन NCERT बुक के बहुत ज़्यादा ईजी ने वो मैं नहीं करवा रहा इस एक्सरसाइज से। आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 वो देखते हैं आप। हाँ जी राजी जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है। सो इन्हों नोट करके रखियो अपनी कॉपीज़ के उपर। दिस क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हुण इस क्वेश्चन के विच आपां करना की है, कित्थों स्टार्ट करना तो कित्थे खत्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों आ, क्योंकि इस क्वेश्चन ये नहीं है भी तुसीं डेरीवेटिव करके डिवाइड करके कितने भी आंसर लैफ्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन जो ने यही कहा वा भी डेरीवेटिव में माइनस वाई बाई एक्स के ही इक्वल प्रूव करना आप, मतलब अपन वो टर्म्स बनानिया पैनिया ने सो दैट वी गैट आर आंसर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई ओवर एक्स। सो वो आंसर बनाने के लिए हूँ आप इन्हू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला काम आऊगा डी एक्स बाई डी टी। देखो राजी यदी पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो पहला 1/2 पावर अगे ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, तो यदी पावर आएगी माइनस 1/2 पहली चीज़। फिर ए दी पावर एक्स का डेरीवेटिव कितना होंगे, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए रेज टू पावर एक्स, तो यदा जो डेरीवेटिव आएगा वो कितना आएगा। हाँ जी बोलो, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी यदा डेरीवेटिव जो आएगा अपने को वो की आएगा ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी एज इट इज़, तो उस तो बाद लॉग ऑफ ए। दिस वन इज़ द डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है जी, मतलब अपने को यही फंक्शन का डेरीवेटिव इत्थे आएगा। तो आप इनू डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म सॉल्व किया ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। हुण गल यही है भी जो अपने को एक्स आ उहदा डेरीवेटिव ये आप लिखांगे वो देखते हैं। तो यदा डेरीवेटिव जो आएगा वो आएगा अपने को हुण एक्स का डेरीवेटिव ए दी पावर एक्स का वो आएगा 1 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्केयर। ठीक है जी, तो इनू आप अरेंज करके लिखते हैं। देखो राजी आह जी वैल्यू ये तो एक्स की वैल्यू एक्स लॉग ए आ गया ऊपर अपने को, इत्थे आ जाएगा एक्स लॉग ए अपॉन आ 2 जो है इत्थे लिख लाँगे आप। आ जी टर्म है इन्हें रूट के नीचे आना। ठीक है जी, आह वाली टर्म माइनस पावर वाली रूट के नीचे आएगी, तो नीचे आके एक्स बन जाएगी, तो इत्थे नाल अपने को कितना आएगा 1 माइनस टी स्केयर। सो ये आ गया अपने को डेरीवेटिव इस फंक्शन का इत्थे। ठीक है जी, आई होप सो दिस डेरीवेटिव इज़ क्लीयर टू यू। इस तो बाद राजी आप की करना वा आ एक्स के नाल आप एक्स कैंसल कर देंगे, मतलब अपने को की बचे इतने लॉग ए अपॉन टवाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्केयर। आ चीज़ अपने को इतने रिटर्न च आ जूगी। सो आप लिख ली। हुण इस तो बाद आप करना फाइंड डी वाई बाई डी टी। सेम प्रोसैस लगेगा डी वाई बाई डी टी के उपर, तो वही वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने को डी वाई बाई डी टी की वही वैल्यू आएगी अपने को माइनस ऑफ वाई। ठीक है जी, इंटू लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्केयर नाल इत्थे कितना आ जाएगा 2 आएगा अपने को इत्थे। तो इन्होंने दोनों को हुण आपां जो डिवाइड करांगे, देखो लॉग ए नाल लॉग ए कट्टिया जाऊगा, अंडर रूट वाले नाल अंडर रूट कट्टिया जाऊगा, 2 के नाल 2 कट्टिया जाऊगा माइनस वाई। इत्थे देखो राजी हुण अपने को की है इत्थे एक्चुअली बाय मिस्टेक आप एक्स लिखा इत्थे एक्स स्क्वेयर आना सी। सो एक्स के नाल एक्स कैंसल होएगा, तो अपने को जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो माइनस का वाई उपरों बचेगा, तो नीचे की बचेगा अपने को एक्स बचेगा, जो एक्स की है लॉग ए दे नाल अपने को रिटर्न च आया सी। दिस एक्स इज टू बी पेंडिंग हेयर, इत्थे एक्स स्क्वेयर नहीं आना सी, इत्थे जो एक्स यू आप इत्थे लिखता। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव एक्सरसाइज। हुण राजे तुसीं गल करोगे सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव की। सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव का मतलब की है भी आपां एक चीज़ नूं 2 बार डिफरेंशीएट करांगे। एक चीज़ नूं 2 बार डिफरेंशीएट करन दा मेरा मीनिंग यही है इत्थे तुहानूं कहण दा भी तुसीं जो पहलां आपां फंक्शन दिता हुंदा उहदा आपां डेरीवेटिव फाइंड करदे हां, उस तो बाद हुण उसे फंक्शन का
जो डेरीवेटिव आ चुके उन्होंने आप दोबारा डिफरेंशीएट करांगे इत्थे, ठीक है जी। तो वो डिफरेंशीएशन का जो प्रोसैस आ वो करना की है वो देखो, आपको दिता होया फर्स्ट क्वेश्चन y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ। ये वाई डैश की वैल्यू कितनी आएगी अपने को 2x प्लस 3 तो वाई डबल डैश मतलब ये डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x करांगे तो कितना आ जाएगा 2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर डबल डेरीवेटिव क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन सेम तरीका तुम सैकेंड क्वेश्चन च लगाओगे। थर्ड क्वेश्चन च लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को है वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, तो वाई डैश कितना आएगा, पहला एक्स एज इट इज़ कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ एक्स का कितना हो गया 1, ओके। तो हूँ वाई डबल डैश, तो पहला कॉस एक्स का कर लें वो कितना आएगा माइनस द साइन एक्स माइनस इतने माइनस आने इतने प्रोडक्ट रूल, पहला एक्स एज इट इज़ साइन एक्स द कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हूँ आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं माइनस द साइन एक्स माइनस द एक्स कॉस एक्स तो माइनस द साइन एक्स, तो ये चीज़ आ गई अपने को। तो यही इतने आ जाएगा माइनस द एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो आ चीज़ इतने अपने को रिटर्न च आ गई। तो मैं माइनस जो मैं कॉमन कटूंगा तो इतने कितना हो जाएगा प्लस। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर सैकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डू योर सैल्फ। फोर्थ क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के उपर है, फिफ्थ भी तो तुसी करना। सिक्स्थ क्वेश्चन भी तुसी खुद ट्राई करोगे, प्रोडक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चन है। सैवंथ सेम है। उस तो बाद एक इनवर्स फंक्शन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के विचों, ठीक है जी। इनवर्स फंक्शन का मतलब की अपन दिता है टैन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स, तो वाई डैश अपन पता हो कितना आएगा ਇਹਦਾ 1/1 प्लस एक्स स्केयर, तो वाई डबल डैश जो ਇਹਦਾ आएगा वो कितना आएगा 1/x स्केयर का स्केयर नीचे वाले का स्केयर फिर नीचे वाला एज इट इज़ 1 का 0 माइनस 1 एज इट इज़ उपर लिया डेरीवेटिव देखो आ 1 का 0 हो जाना है तो एक्स स्केयर का कितना हो जाएगा 2x, तो यदा आंसर अपने को आ गया माइनस ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर। सो इतने ये क्वेश्चन भी अपना खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। उस तो बाद राजी क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। 10th क्वेश्चन आई विल सॉल्व। 10th क्वेश्चन आ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, तो इतने वाई डैश कितना आएगा, पहला साइन एक्स का डेरीवेटिव होंगे अपने को कॉस एक्स, ठीक है जी। तो फिर एक्स का डेरीवेटिव उस तो बाद लॉग एक्स का कितना आएगा 1/x, तो मैं इदा लिख सकता। इस तो बाद हूँ आप वाई डबल डैश जो फाइंड करना तो ये उपर क्वेश्चन रूल लगेगा, पहला नीचे वाली टर्म का स्केयर फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज़ कॉस एक्स का डेरीवेटिव होंगे माइनस द साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स का कितना हो जाएगा 1/x, मतलब ये नीचे एक एक्स और आ जाएगी अपने को इतने माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स ये टर्म अपने को एज इट इज़ तो नीचे वाली एक्स का डेरीवेटिव कितना हो जाएगा 1। देखो इतने एक्स नाल एक्स कटेगी, नैगेटिव साइन में मैं बाहर कॉमन कटूंगा, नैगेटिव कॉमन कटन तो बाद ये बचा मेरे को साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स ओवर एक्स स्केयर, जो आप माइनस में किया इतों कॉमन कढ़िया, ठीक है जी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 10। राजे क्वेश्चनस औखे नहीं है, क्वेश्चनस बहुत ज़्यादा ईजी ने। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, ये की है तुम डबल डेरीवेटिव कढ़ोगे तो वाई की वैल्यू कढ़ के ऐड कर दोगे, यू विल गैट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट आ, उन्होंने कहा वा भी तुसी अपना आंसर जो कढ़ना है क्वेश्चन का वो वाई अलोन च कढ़ना है। वाई अलोन का मतलब की है भी आंसर दे जो भी टर्म्स आनगियां उन्होंने सिर्फ वाई होनी चाहिए, होर उन्होंने कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो आप आंसर ट्राई करते हैं उस क्वेश्चन का, देखते हैं आप डबल डेरीवेटिव उसका कितना आंदा है तो आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। सो 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सब तो पहला काम किया आप वाई डैश फाइंड कर लिए, वाई डैश कितना आ जाएगा अपने को -1 ऑफ √1 माइनस एक्स स्केयर। तो वाई डबल डैश फाइंड करना है, इस तो बाद वो कितना आएगा अपने को 1 माइनस एक्स स्केयर तो उस तो बाद √1 माइनस एक्स स्केयर -1 का 0 हो गया माइनस ऑफ -1 एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्केयर का डेरीवेटिव जो नीचे रूट के विच है वो कितना आएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्केयर इंटू माइनस द 2x। तो आ माइनस से 2 ना -2 कट्टिया गया, आ वाले माइनस ना माइनस भी खत्म हो गया, आ 0 होगी टर्म। तो ये बचा माइनस द x ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर एंड √1 माइनस एक्स स्केयर। सो ये टर्म्स अपने को इतने बचियाँ जो कि आप इतने लिखिया ने, ठीक है जी।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -x ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 - x² ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ। 1/2 + 1 ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ 3/2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ 3 × 1/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੂਟ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, 1/2 ਪਾਵਰ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ? 3 ਲਿਖਤੀ। ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ y ਹੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, y = cos ਇਨਵਰਸ x। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, cos y = x। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ x ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ? cos y। ਤਾਂ y =- -cos y ਓਵਰ 1 - cos² y ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? sin² y। ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? sin³ y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ cos y / sin y ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? cot y। ਅਤੇ ਇੱਕ sin² y ਬਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? cosecant² y। ਅਤੇ cot y ਐਂਡ cosecant² y, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਫ ਯੂਅਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। Afterwards students, let us see the next one. Next question is of question number 13, that is you have to do sin log x ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ y = a e⁻m x + b e⁻n x। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ y - -m + n y' + mny = 0। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ? 0। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ y ਤੇ y' ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ y' ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ y' ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ y ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ y' ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? y' ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ a ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ e⁻m x ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? m ਪਲੱਸ b ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ e⁻n x ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? n। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ y'। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ y', ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? m ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, e ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, e⁻m x, ਅਤੇ m x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? m, ਮਤਲਬ m² ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ n² b e⁻n x। y' ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, y' ਵੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ 15th ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। 16th ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ e⁻x x + 1 = 1। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, e⁻y ਸੌਰੀ ਨੋਟ x। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ e⁻y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x + 1 ਦਾ 1 ਪਲੱਸ x + 1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ e⁻y ਦਾ e⁻y ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? y' = ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, e⁻y ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। 1 + x + 1 y' = 0। ਇਹ ਬਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ? 1 + x y' = -1। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ y' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? -1/1 + x। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ y' ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। y' ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ -1 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 1। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਬਣ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? 1/1 + x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ dy/dx ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ y' ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ 1/1 + x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ y' ਵੀ ਕਿੰਨਾ? ਇੰਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 17th question you have to try by yourself. 17th question is your homework. So here this chapter is to be completed. Chapter number 5, continuity and differentiability is completed here. I hope so you will understand this chapter in a brief manner. वैसे second order derivative ਤੁਹਾਨੂੰ homework ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ exercise, but ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ questions ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ questions. I hope so you will see this video and
complete your work till the chapter number 5's end. Afterwards in the next video you will see applications of derivative. next exercise जो है ਇਹਦੀ ਰੋਲਸ ਐਂਡ ਲਗਰਾਂਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।